Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, one question is asked by many clerks, those are working in public sector banks other than State Bank, कि sir, should we go for SBI Junior Associate examination or not? And some of you have also mentioned in their question, sir, we are having fear of privatization. That's why we want to go for State Bank. What is your opinion? Now, here I am sharing my personal thoughts. Decision is yours. First thing, I don't see any immediate threat of privatization in public sector banks because government is not now talking about privatization and nor any such compulsion appears right away. All public sector banks are showing handsome profits and government is getting regular income through this. So I don't feel that privatization is a worry at present. What happens in future, nobody can predict. So the privatization factor should not decide whether you should leave a public sector bank to move to State Bank of India. This is my opinion. Some people may differ on this also. Second aspect is if you have already done some years of service in public sector bank and your promotion is due for officer maybe 1 year from now or 2 years from now, I think better option is you go for promotion and after becoming scale 1, then you can decide to move to State Bank of India either through CBO if you are so keen in leaving the public sector bank other than State Bank and want to move to State Bank of India, leaving your seniority of clerical in a public sector bank, going to State Bank of India as a clerk and then waiting for fairly long period to become officer, I don't think that is a logical thing. Rest depends upon you because many of you raised a similar query. So I am making this video because these videos are always controversial. Some people may be having very strong feelings against what I am saying. Because what I am saying by experience. Because you are working in a public sector other than State Bank of India, the promotion in most banks is faster. So leaving clerical position in one bank, going to clerical position in another bank due to one factor, that is a fear that is being spread about privatization of some public sector bank where no tangible information is available, because we are hearing this for many years. Now nothing has happened on this front except some movement is there on IDBI Bank, and IDBI Bank was earlier a private sector bank, then become public sector bank, and again now there is a move that they may make it a private sector bank. But for other banks, I don't think there is any serious move going on as of now. So this is an open call. I am only sharing my thoughts because many of you wanted my thought. So I would prefer that if a person is working in clerical in some public sector bank other than State Bank of India, first he should try to go into scale 1. And after becoming officer, now it is your call whether to continue in that bank or to move to State Bank of India through CBO route. Many people, those who have joined as CBO, they are not very happy. But still, it is sometimes social media hype that decides your decisions. So I am not for or against that. This is your personal matter. But as far as I am concerned, I of a view that moving from public sector bank other than State Bank, from clerical cadre to State Bank of India in clerical cadre is not very you can say lucrative or advisable. Rest is your own choice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक प्रश्न निरंतर कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक अदर देन स्टेट बैंक में क्लरिकल पोस्ट पर हैं.
और अभी SBI जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आई है, काफ़ी वैकेंसीज आई है। तो एक टेम्पटेशन होती है कि क्या हमें स्टेट बैंक के लिए अप्लाई करना चाहिए क्लरिकल पोस्ट के लिए कि नहीं। और उसमें से कईयों ने ये भी कहा है कि सर ये सोचने के पीछे हमारा रीज़न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे, स्टेट बैंक शायद नहीं होगा प्राइवेटाइज, तो क्या हम स्टेट बैंक में चले जाएं। देखो, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है उसके ऊपर कोई अभी खास चर्चा नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी, और कोई ऐसा कारण भी अब नज़र नहीं आ रहा कि बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट कोई बहुत जल्दबाजी करे, क्योंकि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्जित कर रहे हैं और रेगुलर डिविडेंड गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी कोई ऐसी संभावना सामने नज़र नहीं आ रही है। कल को क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी एक्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पर अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस फियर की वजह से किसी को पब्लिक सेक्टर बैंक अदर देन स्टेट बैंक छोड़कर स्टेट बैंक में जाने के लिए आवश्यकता है, खासकर उन क्लर्क्स के लिए जिनकी प्रमोशन 1 या 2 साल में आने वाली है। अगर आपकी प्रमोशन आपके बैंक में साल 2 साल में आने वाली है, मीन्स कुछ वर्षों की आपकी सर्विस हो चुकी है, तो वहाँ पर अगर आप ऑफिसर बनकर, और अगर आप बहुत ज़्यादा ही कीन है कि मुझे स्टेट बैंक में जाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CBO के रूट से आप CBO में जा सकते हैं। तो वो एक रास्ता हो सकता है। CBO में जाकर भी बहुत लोग ज़्यादा खुश नहीं है, मगर फिर भी कई लोगों की एक क्रेज़ होती है कि मुझे स्टेट बैंक में जाना है, तो उस समय आप विचार कर सकते हैं, वो आपका निजी विचार होगा। मगर जहाँ तक क्लैरिकल से क्लैरिकल में जंप करने का सवाल है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब लुक्रेटिव या ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है अदर देन स्टेट बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंकों में जो प्रमोशन है वो फास्टर है स्केल 1 के लिए। आप नए सिरे से स्टेट बैंक की लाइन में लग जाएंगे प्रमोशन की, 4-5 साल बाद कब एलिजिबल होंगे, होगी नहीं होगी प्रमोशन, तो ये आपको एक चीज़ सोचने वाली है। बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि मैं इस तरह के विषय बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, काफ़ी लोग मेरे बातों से सहमत होंगे और काफ़ी लोग मेरी बातों का विरोध भी करेंगे, इसीलिए इन विषयों के ऊपर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। पर बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सर आपका एक्सपीरियंस, आप अपनी बात बता दीजिए, फैसला हम अपना कर लेंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी निजी राय है, आपको इस पर चलना है नहीं चलना है ये आपको खुद सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक अदर देन स्टेट बैंक में ऑलरेडी क्लर्क हैं और यहाँ आसानी से अफसर बन सकते हैं, तो पहले अफसर बनने की कोशिश करिए, और ऑफिसर बनने के बाद आप मूवमेंट करना चाहते हो तो आप फ्री हो, क्योंकि स्केल 1 के एक्सपीरियंस के बाद आपको कहीं स्केल 2 की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। और स्टेट बैंक में ही जाना है, मान लो एक क्रेज़ है कि मुझे स्टेट बैंक में ही जाना है, तो CBO का रास्ता भी आपके लिए खुल जाता है। हालांकि जो लोग CBO में गए हैं सारे लोग खुश नहीं हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ अनसेटिस्फाइड भी हैं, और कई लोग वापस भी अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आज जाने के लिए आतुर हैं अगर उनको मौका मिले। तो वो ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चाहत है। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना व्यू है, वो ये है कि क्लैरिकल टू क्लैरिकल मूव करना कोई लॉजिकल नहीं है। हाँ, जिसकी अभी कुछ ही महीने की सर्विस हुई है, मान लो अभी शुरुआत ही है और अभी उसकी प्रमोशन बहुत दूर है, तो वो लोग हो सकता है थोड़ा बहुत इस पर विचार करें, पर सीनियरिटी लूज़ करके एक नई लाइन में लग जाना सेम कैडर के अंदर, ये आपको समझने वाली बात है। आप इसको ध्यानपूर्वक डिसीजन लें। बाकी जितने लोग होंगे सबके अलग अलग विचार होंगे, मेरे भी अलग विचार हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।